Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 34 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set is on number distribution which I've taken from previous year SIMCATs, and the set says IMS International School conducted an exam of 5 subjects: algebra, geometry, English, economics and statistics. The table below gives the partial information about the marks scored by 5 students: Gauri, Shilpa, Sheetal, Swati and Varsha in each subject. The marks scored by the student in each of the subjects were only from among 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 and 19. The marks scored by any student in any two subjects were not the same. Similarly, the marks scored by any two students in the same subject were not the same. The cells highlighted in the golden color denote the top 3 scorers in each subject and top 3 scorers for each student. Further, Shilpa scored 7 more marks in statistics than the marks scored by Swati in geometry. The sum of the marks scored by 5 students in algebra was more than the sum of the marks scored by Varsha in all the subjects by 6 and less than the sum of the marks scored by Sheetal in all the subjects by 2. The sum of the marks scored by the sum of the marks scored by the 5 students in English was equal to the sum of the marks scored by the 5 students in statistics. The sum of the marks scored by all the students in economics was lower than that in any other subject. Further, a table is given. ठीक है, क्वेश्चंस भी एक बार पढ़ लेते हैं. Question number 1: what was the sum of the marks scored by 5 subjects in English? Which of the following option represents the correct order of the sum of scores of the 5 students in all the subjects in increasing order? What was Swati's score in statistics? As per the norms laid by the government, the 3 subjects with the highest scorer are considered for calculating the total score of a candidate. How many of the given 5 students would retain their rank in the new system? ठीक है. So question number 2, 4 and 3 पढ़ के लग रहा है कि chances are very high that I'd be able to figure out values of all the subjects for all the individuals. ठीक है, because question number 3 में अपने को increasing order का पूछ दिया है, question number 3 में exact value पूछा हुआ है, question number 4 में rank का order पूछा हुआ है. For that I need to have पहले की values, तो यानी कि बहुत chances आई है कि I'll be able to figure out these values. फिर उसके basis पे हम कुछ policy change करके rank को identify कर रहे होंगे. ठीक है, एक सुडोको बेस्ड सेट जहां पे रो और कॉलम के अंदर 5 बाई 5 का मैट्रिक्स है, रो और कॉलम में चीजों को भरना है और वो चीजें क्या है, वो इन नंबर्स में से कुछ एक होने वाली, वो 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 में से कुछ एक होने वाला. एंड क्यों ये सुडोको बेस्ड सेट है, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है. सिमिलरली द मार्क्स स्कोर्ड बाय द एनी स्टूडेंट इन एनी टू सब्जेक्ट वर नॉट द सेम, यानी कि किसी भी भाई साहब ने किसी दो सब्जेक्ट में सेम नंबर नहीं किया हुआ है. यानी कि गौरी शिल्पा शीतल स्वाति वर्षा ने किसी भी सब्जेक्ट में सेम मार्क्स नहीं किए. इन सेम मैनर फॉर सब्जेक्ट इज इट इज मेंशन कि किसी भी इंडिविजुअल ने सेम स्कोर, किसी भी दो इंडिविजुअल ने सेम स्कोर नहीं किया. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ था. क्या लिखा था? द सेल्स हाइलाइटेड इन द गोल्डन कलर डिनोट्स द टॉप 3 स्कोरर इन ईच सब्जेक्ट एंड टॉप 3 स्कोरर फॉर ईच स्टूडेंट. ये जो गोल्डन कलर वाले हैं ना, ये बॉक्सेस, ये क्या कर रहे हैं, टॉप 3 बना रहे हैं. यानी कि गौरी की बात करें तो गौरी का टॉप 3 में 12 है, यानी बॉटम 2 में क्या होने वाला है, 10 और 11 ही होने वाला है. ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं होने वाला है तो बॉटम 2 की यही दो वैल्यूज होने वाली, यूनिक वैल्यूज. तो 10 और 11, 11 और 10 होना चाहिए. अच्छा, क्या शिल्पा के लिए ये चीज लॉजिक यूज किया जा सकता है? नहीं, बिकॉज शिल्पा के लिए 18 पता है, वी आर नॉट श्योर कि ये बॉक्स में क्या आने वाला है. फॉर शीतल नहीं बता पाएंगे. शीतल के लिए वी कैन सी कि 12 है यहाँ पे, तो यहाँ पे शायद 10, 11 भी आ सकता है, बट शायद और बड़ी वैल्यू भी आ सकती है. अगर ये 12 टॉप 3 में होता ना तो शायद हम यहाँ पे 10, 11 लिख सकते हैं. फॉर स्वाति क्या लिख सकते हैं? नहीं. फॉर वर्षा के लिए लिखा जा सकता है, बिकॉज वर्षा का 12 तो दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 और 11 और 11 और 10. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा बात करें तो कॉलम वाली चीज को भी चेक कर सकते हैं. देखो एल्जेब्रा पे ध्यान दो तो एल्जेब्रा पे भी 12 टॉप 3 में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 11 और 10. ज्योमेट्री पे कुछ भी नहीं हम कंक्लूड कर पाएंगे. इंग्लिश के लिए वी कैन नॉट कंक्लूड. इकोनॉमिक्स के लिए वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 10 और 11. स्टैटिस्टिक्स के लिए नहीं कंक्लूड किया जा सकता. ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर सेट जो ये टेबल दिया हुआ था ना, ये इतने हिस्से में था. आई एडेड these बॉक्सेस, मतलब ये एक कॉलम और एक रो को ऐड करा हुआ. क्यों ऐड करा? यहाँ पे मैं टोटल लिखने वाला हूँ. ठीक है, टोटल इसलिए बिकॉज स्टेटमेंट्स पढ़ के मेरे को समझ आया था कि मेरे को टोटल का सम यूज होगा सॉल्यूशन के लिए. ठीक है. अब चलते हैं पॉइंट्स पे, चलते हैं पॉइंट जो जो बोला है उसको यूज करते हैं. शिल्पा स्कोर्ड 7 मोर मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्वाति इन ज्योमेट्री. शिल्पा को ना स्टैटिस्टिक्स में, शिल्पा को यहाँ पे 7 नंबर ज्यादा मिले. किससे? स्वाति के ज्योमेट्री वाले स्कोर से, स्वाति के ज्योमेट्री वाले स्कोर से. ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ए मतलब बेसिकली ए और A+7 होना चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है. जिसमें से स्वाति का स्कोर क्या होने वाला है, A, एंड शिल्पा का होने वाला A+7. और ये A और A+7 कहाँ से आएगा, यहीं से आना चाहिए.
ठीक है। क्या मैं 10 और 17 ले सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 अगर यहाँ लूंगा तो बॉटम 2 क्या ले पाऊंगा स्वाति के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आई कैन नॉट गो फॉर 11, ठीक है। क्या मैं 12 और 19 ले सकता हूँ? पॉसिबल है। क्या मैं 13 तो गिवन रेंज में नहीं है। क्या मैं 15 ले सकता हूँ? अगर 15 लूंगा तो आई नीड टू हैव 22 एज द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि पॉसिबल नहीं। तो मेरे पास एक ही केस मिला, क्या मिला? 12 और 19 वाला। तो मेरे को एक वैल्यू मिल गई यहाँ पे। स्वाति का ज्योमेट्री में होना चाहिए था 12 और स्टैटिस्टिक्स में शिल्पा को होना चाहिए था 19, ठीक है। अब स्वाति का अगर 12 टॉप 3 में है, यानी बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट है वहां पे क्या होना चाहिए था? 10 और 11 आना चाहिए था। 10 और 11 आना चाहिए था, 11 और 10 आना चाहिए था। Similarly, for geometry, we can also say the similar thing. Since 12 is one of the top 3 score, so the bottom 2 has to be 10 and 11 में से कोई एक, कहीं एक, and 11 and 10 में से कहीं एक, ठीक है जी। सेट धीरे 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 शेप अप हो रहा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 को हमने काफी हद तक यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 2, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 5 स्टूडेंट इन अलजेब्रा, सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट इन अलजेब्रा, यानी इस जगह की बात हो रही है। अलजेब्रा में जो 5 बच्चों का जो नंबर था वाज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय वर्षा इन ऑल द सब्जेक्ट बाय 6, यानी कि ये वर्षा के स्कोर से 6 नंबर ज्यादा है। वर्षा का टोटल स्कोर कितना होने वाला है? लेट्स से वर्षा का टोटल स्कोर वाज x, सो दिस हैज टू बी x + 6। यही लाइन कहना चाह रहा है। फिर से लाइन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 5 स्टूडेंट इन अलजेब्रा वाज मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द वर्षा इन ऑल द सब्जेक्ट बाय 6, ठीक है। यानी कि इसका x का सम और ये x + 6 होना चाहिए, ऐसा कुछ अपने को फिगर आउट करना। अगर ध्यान दो तो इस वाले कॉलम में और इस वाले रो में 12 की वैल्यू तो सेम है, ठीक है। 10 और 11 भी सेम है, यानी कि ये जो पूरा गेम बनने वाला 6 नंबर वाला का डिफरेंस वो इन्हीं दोनों से बनने वाला है, इनका और इसका मिला के, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हो? बेसिकली वो नलीफाई हो जाएगा ना, 12 भी खत्म हो जाएगा, 10 11 खत्म हो जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज और ये दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। यानी कि 15 में मैं कुछ ऐड करूं और वो 18 में कुछ ऐसा x + 6 बन जाए, ठीक है। व्हाट कैन दैट बी वैल्यू? अगर ये 15 है, ठीक है, 10 11 हो नहीं सकती, 12 हो नहीं सकती, ठीक। तो व्हाट आई कैन डू, 10 11 12 तीनों हट गया। 15 में 15 तो ऐड करेंगे नहीं, बिकॉज 15 मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 15 में मैं क्या 16 ऐड कर सकता हूँ, तो दिस विल बिकम 31, यानी कि यहाँ पे 37 जैसा स्कोर होना चाहिए। 37 होने के लिए क्या होगा? 18 और 19, दैट इज द ओनली पॉसिबल स्कोर। अच्छा, क्या मैं और केसेस बना सकता हूँ? 15 में मैं क्या 17 ऐड कर सकता हूँ? 15 और 17 कितना होता है? 15 और 17 होता है 32, 15 और 17 होता है 32। उस केस में आई नीड टू हैव 38 एज अ स्कोर। इस वाले अलजेब्रा का 38 बनाने के लिए मेरे को 20 बनाना पड़ेगा, यानी 20 तो रेंज में ही नहीं है। अच्छा, अब मेरे को क्या मिल गया कि यार मैं इसके आगे की वैल्यू चेक करने का कोई लॉजिक नहीं है, मेरे पास एक ही केस मिलेगा जहां पे ये 31 और 37 वाला बनना चाहिए था। यानी कि 15 में मैं अगर 16 ऐड कर देता हूँ तो दिस विल बिकम 31, एंड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 19, तो दिस विल बिकम 37। सो बाय दिस लॉजिक मेरा ये भी भर गया और इसका सम क्या तैयार हो गया? 18 और 12 कितना हो गया? 30 और इधर 11 और 19 भी हो गया 30 और 30 60 और 10 हो गया 70, यानी कि वर्षा का स्कोर कितना होना चाहिए था? 64, ठीक है। चेक कर लें 64 है कि नहीं है। इसको x को हटा लेते हैं। 64 के लिए अपने को क्या क्या मिला हुआ था? 12 15 इज योर 27, 27 में 10 11, यानी कि 27 + 10 इज 37, 37 + 10 इज 47, 48, 48 और 16, तो 48 और 16 कितना हो गया? 64, ठीक है। ये तो एकदम परफेक्ट बन गया। सो पॉइंट नंबर 2 से मैं 18 19 और 12 और 16 की वैल्यू को फिगर आउट कर पाया। अभी ये पॉइंट नंबर 2 मैंने पूरा नहीं पढ़ा, अभी भी बाकी है। The sum of the marks scored by the 5 students in algebra was more than the sum of the marks scored by the Varsha and all the subjects by 6, and less than the sum of the marks scored by Sheetal in all the subjects by 2, यानी कि शीतल का जो टोटल मार्क्स है उससे वो 2 नंबर कम था। यानी कि अगर 2 नंबर कम था तो यानी कि शीतल का जो टोटल नंबर है, शीतल का ये रहा, ये कितना होना चाहिए? 72 होना चाहिए था, तभी वो 2 नंबर कम है, ठीक है। 72 कैसा बनेगा? देखो यहाँ पे 19 मिला हुआ, 16 मिला हुआ, 12 मिला हुआ, ये मिला हुआ है, ठीक है। तो 72 में से 12 और 16 कितना होता है? 28, 28 और 19, 28 और 19 कितना होगा? 28 + 20 कितना होता है? 48, 48 में से एक कम कर देते 47, तो 47 में आई एम लेफ्ट विथ कितनी वैल्यू? 72 के लिए, मतलब 47 और 5 एंड विच इज 52 और उधर 22, यानी कि 25 बनाना इन दोनों को यूज करके,
ठीक है, इन दोनों को यूज करके 25 बनाना है तो 10 और 15 हो सकता है या 11 और 14 हो सकता है। ठीक है, 10 और 15 ही लेना पड़ेगा बिकॉज 14 तो वैल्यू ही नहीं है। ठीक, समझ आ रहा है लॉजिक? बेसिकली इसके सम पे मैं खेल गया और कुछ नहीं करा मैंने। ये 72 बनाना था, यहाँ पे इन दोनों को 25 बनाना पड़ रहा है, तो 25 के लिए आई नीड टू हैव 10 एंड 15 एज दी वैल्यू, क्योंकि 11 और 14 नहीं बन सकता। ठीक है, तो भैया अपने को ये मिल गया 15 और ये मिल गया 10। ठीक, अगर वो 10 मिला तो ऊपर वाला भाई साहब भी 11 मिल जाएगा, क्योंकि इन्हीं की तो इधर और वाली वैल्यू थी। ठीक है, तो अपने को ये मिल गया 10 और ये मिल गया 11। इसी के लॉजिक से यहाँ पे भी मिल गया 10, तो ये भी हटा देते और यहाँ मिल गया 11, ये भी हटा देते हैं, यहाँ मिल गया 10 और यहाँ मिल गया 11। ठीक, अब क्या था, एक और जगह मिल गया 10 और 11। बेसिकली इधर और की वैल्यूज मैंने भर रखी थी सुडोकू के तरीके से, और मैंने एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करा, उसकी हेल्प से आई आइडेंटिफाइड ऑल दी वैल्यूज। बाकी मतलब सब जगह पे यूनिक सॉल्यूशंस मेरे को मिलते गए। ठीक है, चलो जगह बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, एंड यहाँ पे भी ये चीजें मिल गई। ठीक है, अभी देखो पॉइंट नंबर 2 पढ़ने से चीजें काफी अपने लिए आसान हो गई। ठीक, पॉइंट नंबर 2 मैंने पूरा यूज कर लिया। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 और 4 अभी भी बाकी है। अभी अगर इस जगह पे पॉज लो तो देखो, तो गौरी के लिए पूरे नंबर्स मिल चुके हैं, गौरी के लिए सॉरी अलजेब्रा के लिए पूरे नंबर मिल चुके हैं, ज्योमेट्री के लिए एक वैल्यू मिलना बाकी है, इंग्लिश के लिए 2 वैल्यूज मिलना बाकी है, इकोनॉमिक्स के लिए सारी वैल्यूज मिल गई। तो इकोनॉमिक्स का टोटल कितना हो गया, 12 और 10 22, 22 और 15, 22 और 15 कितना हो गया 37, 37 और 10 47, 47 और 7 इज 47 और 7 इज 54, 54 और 11 इज 65, यानी कि ये मिल गया सम 65। क्या इसका हम कर सकते हैं, इसके लिए 11 और 10, अच्छा यहाँ पे भी देखो यार पूरा मिला हुआ है ना, 11 और 10 की जगह पे 10, बिकॉज 11 यहाँ पे है तो 10 यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, इसको भी अपन रब कर लेते हैं। ठीक, अच्छा क्या कोई कॉलम का सम मिल चुका है, कॉलम का सॉरी रो का, शीतल का पूरा अपने को वैल्यूज मिल चुकी हैं, वर्षा के लिए पूरी वैल्यूज मिल चुकी हैं, स्वाति के लिए वी आर नॉट श्योर क्योंकि ये एक वैल्यू है जो भी अपने को आइडेंटिफाई करना बाकी है, एंड शिल्पा के लिए। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 और 2 यूज करके टेबल का काफी एलिमेंट जो है मिल चुका है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। The sum of the marks scored by the 5 students in English was equal to the sum of the marks scored by the 5 students in statistics. इंग्लिश का जो सम है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स के सम के बराबर है। ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स के सम के बराबर है तो चलो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और थोड़ा एक्सेस इसका मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो कितना होने वाला है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक जगह बना लेते हैं। क्या बोला था, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 5 स्टूडेंट इन इंग्लिश वाज द टू इक्वल टू द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 5 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स। तो पहले तो स्टैटिस्टिक्स का नंबर कितना बन रहा है ये निकालने, अगर 19 और 10 29, 29 और 2 31, 31 और 10 41, 41 और 10 51, 51 और 6 57, यानी कि 57 प्लस बी, ऐसा कुछ हो गया ना। 10 19 29 29 और 2 31 और 41 41 और 10 51 51 और 6 57 57 प्लस बी, बी यानी कि ये वाली वैल्यू को अपने को यहाँ पे कुछ रखना है। ठीक है, अब ये बी की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर ये सोचें बी की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन 12 का मतलब 15 प्रॉब्ली आ सकता है, 16 नहीं आएगा क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कॉलम में ऑलरेडी 16 आ चुका है। ठीक है, 15 आ सकता है, 16 आ नहीं सकता, 17 नहीं आ सकता बिकॉज आपका ऑलरेडी 17 यहाँ पे रो में बैठा हुआ है, 18 प्रॉब्ली आ सकता है। ठीक है, 19 आप दे नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे कॉलम पे बैठा हुआ है, यानी कि ये दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे 57 प्लस बी पे आना चाहिए। बी की वैल्यू इट कुड बी इधर 15 और 18, यानी कि अगर 15 होगी तो कितना बनेगा 57 प्लस 5 इज 62 एंड 72, यानी कि 72 होगा या तो 75 होगा। अगर स्टैटिस्टिक्स का अगर इतना है तो भाई साहब हमें इंग्लिश का भी इतना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश का भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा, या तो 72 या तो 75। ठीक है, अभी कितना बन रखा है, अभी बन रखा है 16 11 और 10, 16 और 11 कितना होता है 26 और 27 और 10 37 बन रखा है। अगर 37 बन रखा है, ठीक है 37 बन रखा है, यानी कि पीछे कितना बनाना बचा है इस वाले केस के लिए और इस वाले केस में, अगर इधर करें तो कितना बच गया 37 और 35 बनाना और बचा, और इस वाले केस की बात करें तो 38 बनाना और बचा है। ठीक है, अब देखो आसान हो गया ना, क्या मैं 38 बना पाऊंगा, और 38 बनाने के लिए मेरे को 19 और 19 करना पड़ेगा विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे 75 नहीं बना सकता।
अगर मैं 75 नहीं बना सकता यानी कि 18 नहीं ले सकता, यानी कि क्या लेना पड़ेगा 15, और 15 होने से क्या बनना चाहिए 72, यहाँ पे भी बनेगा 72। 72 कैसे बनेगा, अब ये प्रॉब्लम 35 कैसे बना जाए, 35 बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा 18 और 17, मतलब 17 और 18 या 19 और 16, ये दो वैल्यूज बन सकती थी क्योंकि 35 बनाना। इट कुड बी 17 प्लस 18 या 19 प्लस 16। अब जरा चेक कर लेते हैं कि क्या बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पे ध्यान दो तो आपको कॉलम में 16 ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप 19 और 16 वाला कॉम्बो नहीं ले सकते बिकॉज उस केस में 16 हो जाएगा रिपीट। तो क्या लेना पड़ेगा 17 और 18। फर्दर 17 18 कहाँ पे आए, 18 यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज शिल्पा के लिए 18 ऑलरेडी मेंशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। अब अपने को इंग्लिश का, स्टैटिस्टिक्स का, इकोनॉमिक्स का, ये चारों का मिल चुका। अपने पास एक बचा है विच इज ज्योमेट्री का आइडेंटिफाई करना। गौरी के लिए भी स्कोर आइडेंटिफाई करना बाकी, शिल्पा के लिए स्कोर आइडेंटिफाई। शिल्पा का क्या स्कोर हो जाएगा 18 और 11 इज 29, 29 प्लस 10 कितना होता है 39, 39 प्लस 7 कितना होता है 46, 46 प्लस 10 कितना होता है 56, 56 प्लस 20 कितना होता है 66, 76 और एक कम हो जाएगा 75, ठीक है। 75 आ गया शिल्पा के लिए टोटल स्कोर। स्वाति के लिए भी फिगर आउट किया जा सकता है, 10 प्लस 12 इज 22, 22 प्लस 11 इज 33, 33 प्लस 7 40 और 10 40 50, सॉरी फिर से पढ़ लेते हैं, 10 12 22 22 और 11 33 33 और 17 40 और 50 50 और 15 65, ठीक है जी 65 भी निकाल दिया। अब अपने पास एक बचा हुआ है गौरी का, ये वाला चीज निकालना। गौरी का जो ये स्कोर है ये क्या होने वाला है एनीथिंग अबाउट 12, ठीक है। एनीथिंग अबाउट 12 का मतलब अब वो क्या हो सकता है ये भी देख लेते हैं। अच्छा एक पॉइंट है वो भी पढ़ना बाकी, जरा उसको यूज कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं इसमें क्लियर कर लिखो। The sum of the marks scored by all students in economics was lower than that in any other subject. इकोनॉमिक्स का जो नंबर है वो सबसे कम था, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या होने वाली है 66 से ज्यादा, 66 या उससे ज्यादा कितनी हो सकती है पहले ये देख लेते हैं। 15 12 10 11 हो सकता है इसी में क्लियर कट वैल्यू मिल जाए। 15 और 12 जो 27, 27 और 10 हो गया 37, 37 और 10 हो गया 47 और 1 48, 48, 48 में बेयर मिनिमम अगर चाहिए तो क्या चाहिए 17 चाहिए ताकि वो 65 बन जाए, ठीक है। बेयर मिनिमम अगर मैं 17 लेता हूं तो वो बनेगा 65, 17 आई कैन नॉट टेक, ठीक है, क्योंकि वो बराबर कर देगा और इट इज मेंशन कि भैया ये लोअर है ये बराबर नहीं है। तो 17 आई कैन नॉट टेक, 18 आई कैन नॉट टेक बिकॉज गौरी के लिए 18 इंग्लिश में ऑलरेडी अवेलेबल है, सो डुको का लॉजिक से वो भी एलिमिनेट। द ओनली वैल्यू व्हिच इज लेफ्ट इज 19, तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 19, 19 की वजह से यहाँ पे क्या आ गया 19 और 11 हो गया तुम्हारा 30, 30 10 40, 40 और 12 52, 52 और 5 57 और 67, ठीक है। ये आपका बन गया यहाँ पे पूरा परफेक्ट। एक बार अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आपको ये रो और कॉलम का सम चेक कर लेना चाहिए। एक बार ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। 19 और 11 कितना होता है 30, बगल में भी 30 और 10 यानी कि 70, ठीक है। एक बार चेक कर लें, ये कह रहा है 5 5 2 7 7 5 12 4 16 कैरी 1, 5 5 2 7 7 5 12 4 16 कैरी 1, 8 8 7 15 15 7 22 22 6 28 28 और 6 34। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 7 1 8 8 7 15 15 और 7 22 22 6 28 28 और 6 34। इधर से भी चेक कर लेते हैं क्या मेरा सम बराबर आया है। 7 + 2 9 9 + 5 14 + 2 16 कैरी 1 1 8 8 6 14 14 और 7 21 21 और 6 27 एंड 7 इज 346, यानी कि मैंने दोनों तरफ से ट्राई मार लिया, दोनों ही तरफ से सम बराबर आ रहा है, यानी कि मेरा जो भी पूरा क्वेश्चन बना है एकदम परफेक्ट बना होगा। चलो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट। व्हाट वाज द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 5 स्टूडेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में भाई साहब पांचों का मिला के कितना आया 72। आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड 72, ठीक है जी। Which of the following option represent the correct order of the sum of the scores of 5 students in all the subjects in increasing order। अच्छा increasing order यानी कि सबसे कम से लेके सबसे ज्यादा जाना है। तो सबसे ज्यादा किसका है शिल्पा का स्कोर है, शिल्पा का तो तीनों ऑप्शन में। सबसे कम किसका है वर्षा का स्कोर है, यानी कि ये खत्म वर्षा का, यानी कि वर्षा के बाद स्वाति का है 65, 64 के बाद स्वाति का है, उसके बाद किसका है गौरी का है। तो ऑप्शन नंबर सी देख सकते हो ना, वर्षा का इट इज 64 65 70 72 and 75, ठीक है। व्हाट वाज स्वाति स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स। स्वाति का स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स ये रहा, स्वाति का स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स कितना है ऑप्शन नंबर 2 15, ठीक है। As per the new norms laid by the government,
The three subjects with the highest scores are considered for calculating the total score of candidate. अच्छा, टॉप 3 स्कोर का यहाँ पे गेम है, ठीक है, मतलब वही आईसीएससी वाली कहानी, बेस्ट ऑफ 5 है ना, तो बेस्ट ऑफ 3 यहाँ पे भी करना है. हाउ मेनी ऑफ द गिवन 5 स्टूडेंट वुड रिटेन देयर रैंक इन द न्यू सिस्टम. अच्छा, एज इफ नाउ रैंक 1 पे कौन है, रैंक 2 पे कौन, रैंक 2 रैंक 3 देख लेते हैं. तो रैंक 1 2 3 तो अपने को पता है, हमने निकाल रखा है. गौरी और इसका सबका निकाल लेते हैं. इसका टॉप 3 में कितना आ रहा है, 18 और 12 कितना होता है, 30. 30 और 9 कितना हो गया, 49. ठीक है ना. 18 12 30 और 19 49. 18 और 19 और 17 यानी कि ये कितना होना चाहिए, 54, बिकॉज 18 का 3 कर देंगे ना. 19 16 और 15, तो 19 और 15 इज योर 34 है ना. 19 और 5 24 और 10 हाँ 34, और ये कितना आ गया 50. ठीक है. और स्वाति का कितना स्कोर हो गया, 12 17 और 15, तो 12 एंड 17 और 15 इज योर 32, 32 और 12 इज योर 46. 15 और 17 32, सॉरी 44 है ना, 44. 12 15 और 17, 15 17 32, 32 और 12 इज 44. ठीक है. वर्षा का 12 15 और 16, तो 15 और 16 इज और 31, 31 और 12 इज और 43. अब इस केस में रैंक 1 पे कौन होगा, रैंक 1 पे होंगे शिल्पा. ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली होगी. उसके बाद शिल्पा के बाद कौन करने वाला है, 50 नंबर वाला, यानी कि शीतल सेकंड नंबर पे होना चाहिए. थर्ड पे कौन होगा, शिल्पा शीतल के बाद गौरी. ठीक है, गौरी के बाद कौन होगा, स्वाति, एंड देन इट इज वर्षा. ठीक है, ये अपने रैंकिंग ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लिया. तो आंसर क्या होना चाहिए, हाउ मेनी ऑफ द गिवन 5 स्टूडेंट वुड रिटेन देयर रैंक इन द सिस्टम. यार पांचों ने रैंक रिटेन करी हुई है, पांचों का रिटेन है, तो आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज. ठीक है, चलो. So that's it from this particular set and keep practicing.